we are focusing on the next metallurgy, that is silver. It's also one of the important metallurgy that comes in your board examination. And 3 marks questions comes from the this thing. 3 to 6 marks can be come from this topic. So let's focus on the metallurgy of silver. When you talk about the metallurgy of silver, first of all I have written all the ores that is required. So the sulfide ores, if you see, then I have written you silver grants. This is Ag2S is been there. So this is the main ore or the G4 which you can have a look of it. And we have other ores also. Ruby silver is there, your silver copper glance is there, horn silver is been there. So these are the basically the most of the time they are writing these names: silver glance, this thing, your this silver copper glance, then this thing ruby silver, then horn silver. So this thing other name also I have written, because sometimes I don't remember that any time in boards they have written these names, but still I always write down so that the children should aware of it. If anyhow if it's coming, then if you are not aware of what ore they are talking about. So these are the ores that is of sulfide ores. You can use any other ore also, like we have this thing, this horn silver is basically this particular ore is your हेलाइड ओर, ठीक है ना, क्लोराइड्स है ना, तो इट इज़ अ हेलाइड ओर. ऊपर के जितने 4 हैं वो आपके सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, जो 3 हैं, और ये 4 वाला आपका हॉर्न सिल्वर ये हेलाइड ओर है. So I think this is clear to you what ores you have to focus. Now let's go for there are different methods, but we have to focus on the mark author of forest cyanide process. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको देख के चलना है. तो सबसे पहला जो स्टेप आपको पहले तो आपको अगर पूछा जाता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर आप किससे करेंगे, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर ओर, तो आपके पास नेम होना चाहिए मार्क ऑथर, कभी का नाम लिख के भी आ जाता है, एंड फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. ठीक है, तो इसमें काफ़ी फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स को देखो. सबसे पहला तो देखो, हमेशा आँख बंद करके क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर यू शुड राइट डाउन, राइट, ठीक है. देन सेकेंड यू स्टार्ट अप विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ठीक, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर अगर आप फॉलो अप करते हो तो यू नो दैट दिस फाइनली ग्राइंडेड ओर इज़ बीन कॉन्सेंट्रेटेड, या आप कह सकते हो इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि आप सल्फाइड ओर ले रहे हो, तो इसमें भी वही है, बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस या मेथड, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. ठीक, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है. नाउ थर्ड स्टेप इज़ योर, नाउ विल फोकस ऑन द थर्ड स्टेप, साइनाइड ट्रीटमेंट या साइनाइडेशन कह सकते हो, या ट्रीटमेंट विद सोडियम साइनाइड सोल्यूशन, कुछ भी स्टेप हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. सोडियम साइनाइड सोल्यूशन, इसमें ट्रीटमेंट वर्ड और लगा लेना, ट्रीटमेंट विथ सोडियम साइनाइड solution. ठीक है, तो दिस वे वी आर यूजिंग. तो व्हाट यू आर डूइंग, द कॉन्सेंट्रेटेड ओर विच यू आर यूजिंग, you are treating with the dilute solution of your sodium cyanide, and later on it is basically agitated by your blowing of current of air through it. So what is happening, the silver that is present in the ore, it's been passed in the solution, and it change itself to a complex, and that complex, if you remember, we have discussed in class 10th also, sodium argentocyanide, it was a complex salt. So that particular complex is been formed over here. So I'm just writing down this reaction. If you get through this thing, this reaction is also you must be remembering, we have discussed in our coordination chemistry also. So this particular reaction, this thing is, you are getting my point, this is your silver ore, it reacts with the sodium cyanide solution, so it forms you the complex that is your sodium argentocyanide, ठीक है, and 2Na2S. So what did I mention you the name, that is sodium argento साइनाइड, ठीक है.
ये कॉम्प्लेक्स होता है जो ये फॉर्म होता है. So I'll write down the procedure also, what I have done, how this reaction is being carried on. This thing I'll discuss later on, but I am just talking about the reaction. So what happened, this reaction is basically, you can see it's a reversible reaction, reversible sign is been there, and over here this sodium sulfide is also formed. So you have to remove it from here, because if you will not remove it, it will again, the reaction will convert back to the same point where you have started. So this should be removed. तो आप बैकवर्ड रिएक्शन ना हो जाए, तो हमें क्या है, सोडियम सल्फाइड को रिमूव करना. तो हाउ इट इज़ बीन रिमूव, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सो इन दिस ओनली, जो कॉम्प्लेक्स बना है, सोडियम सल्फाइड बना है, इसी में आप क्या करते हो, और ज़्यादा क्या करोगे, एयर को ब्लो करते हो और पास करते हो, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है सोडियम सल्फाइड जो है वो फर्दर आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो आपको लेटर ऑन सल्फ़र के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो रिमूव हो जाता है. सल्फ़र तुम्हें मालूम है सॉलिड फॉर्म में आएगा, नीचे वाइट पीपीटी आपको दे देगा, है ना. तो व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस ये Na2S जो सोडियम सल्फाइड है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर ये रह जाएगा उसमें, तो ये बैक रिएक्शन होने लगेगी. तो आपने फर्दर उसमें ऑक्सीजन पास कराया, भाई ऑक्सीजन पास करोगे तो ऑलरेडी उसमें वाटर भी तो मौजूद ही होगा ना. सो ऑक्सीजन यू आर पासिंग, सो सोडियम सल्फेट इज़ बीन फॉर्म्ड, अलॉन्ग विद दैट NaOH इज़ बीन फॉर्म्ड, और प्रेसिपिटेट में आपका सल्फ़र आपको मिल जाएगा. ठीक है, बैलेंसिंग आप कर लीजिए. यहाँ पे 4 लगेगा, दिस पार्ट इज़ 5, एंड 5 नहीं, इसको आप रखोगे 2, ये रहेगा 5, एंड दिस वे यू कैन पुट इट 2 ओवर हियर, दिस इज़ 4, एंड सल्फ़र विल बी 2. सो दिस वे जो मेटालिक सिल्वर है वो अब हमें आगे देखना है कि हम कैसे क्या करेंगे. ये चीज़ें आपके पास जो है, ये सल्फ़र जो है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, आई एम राइटिंग द थ्योरी पार्ट ऑल्सो फॉर इट. Now children, I have written the points which I have discussed. We have already discussed with the concentration of 4. As you know, this is the point, the third basically point, the cyanidation or the treatment with the sodium cyanide solution. So whatever I have discussed in the short, in the detailed form I have written over here. So you have to learn this part only. This way, if the metallurgy of silver comes, 3 marks question आता है, if it will come, then this much you have to write down, you cannot ignore it. So this is the third point which I have written. जो reaction है, सोचो इतना 2 ही reaction थे, but we have to discuss the detailing part. Now sometimes the children is not using this part, but they are using some other ore, जैसे कि उन्होंने कोई halide का ore दिया. So this thing we have to focus that this horn silver is it can also be dissolved in the sodium cyanide solution, so not a big issues of it. So you can use this part also, जैसे AgCl. लेकिन please, it's my request, you go for the long method, because in our course we have to focus the long method. Children are doing, I cannot assure you that the concept will accept this answer or not, but you have to focus this part. ठीक है, तो दिस थिंग इज बीन देयर. नाउ यू हैव गॉट दीज थिंग्स, कॉम्प्लेक्स इज बीन फ्रॉम दिस सोल्यूशन ऑफ सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड, हाउ यू कैन रिकवर द सिल्वर. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट बीन कंप्राइजेस योर, जो आपका 4th स्टेप होता है वो आपका रहेगा रिकवरी ऑफ सिल्वर. ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे. तो बेसिकली आप क्या करते हो, जो सोल्यूशन आपका होता है सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड वाला, ठीक है, NaAgCN होल्ट वाइज, इसका रिएक्शन आप जिंक से कराते हो. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, या तो आप इसमें स्क्रैप जिंक यूज़ कर सकते हो, और यू कैन यूज़ एन डस्ट, जिंक डस्ट. ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी दे सकते हो. ये तो कॉम्प्लेक्स है ही, आपको पता ही है. ठीक है, तो आराम से ये रिप्लेस हो जाता है. आप इसमें ना जो आपको Ag आपको नीचे मिल जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, और यहाँ से आपको Na2ZnCN होल 4. ठीक है, ये ब्रैकेट्स है ना, CN होल 4. ठीक है, दिस कंपाउंड इज बीन फॉर्म्ड. तो प्लस ये है, तो ये आपका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्रा साइनोजिंकेट. ठीक है, 2. सोडियम यू है, टेट्रासाइनो CN की वजह से 4 CN इज बीन दैट, तो टेट्रासाइनो, और Zn है तो जिंकेट है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो उसका है वो 2 है, तो वो आपने लिख दिया है. सो दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फ्यूजन.
फ्यूजन पे आप जाते हैं तो फ्यूजन में क्या होता है, ये जो प्रेसिपिटेट सिल्वर होता है इसको आप वॉश करते हो, ड्राई करते हो, इसको मेल्ट करते हो, उसमें आप है ना पोटेशियम नाइट्रेट डालते हो ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके, और कोई भी और जो मोल्टन मेटल में फिर उसको कूल करते हो, तब आप उसको जो आपको सिल्वर मिलता है वो थोड़ा थोड़ा शाइनी सिल्वर मिलता है। लेकिन अभी जो सिल्वर मिला है वो आपको शाइनी सिल्वर नहीं मिलता है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग डाउन द प्रेसिपिटेटेड silver is washed, dried and melted with KNO3, ठीक है, to oxidized any zinc the molten metal on cooling gives a shiny compact mass of silver, ठीक है। Now the next step is refining of silver by electrolytic process और Mohs process। तो इसमें वही चीज़ें इलेक्ट्रोलिटिक आप रिफाइनिंग जो इसकी करेंगे वो बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में यूज़ करेंगे। एनोड यूज़ करेंगे आप अपना जो आप यूज़ करेंगे इम्प्योर सिल्वर रॉड। कैथोड आप यूज़ करेंगे प्योर सिल्वर प्लेट्स, ठीक है। और साथ में आप अपना इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका AgNO3 सोल्यूशन कंटेनिंग 1% ऑफ HNO3 सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप करंट पास करोगे तो जो प्योर सिल्वर होगा इट विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड द सेम वे एंड द इम्प्योरिटीज़ विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉपर एंड द इम्प्योरिटीज़ ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी रिमूव्ड, है ना, क्योंकि उसमें जो सिल्वर है उसमें कॉपर की भी इम्प्योरिटी हो सकती है और जिंक की भी हो सकती है, तो वो सब वॉश, गोल्ड की भी हो सकती है, तो वो सब जो है एनोड मड में सेटल डाउन हो जाती है। तो जो आपको याद रखना है कि एनोड मड आपका क्या रहेगा इसमें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो इम्प्योरिटीज़ ऑफ कॉपर, इन फैक्ट इट कैन बी ऑफ गोल्ड, ठीक है, और साथ में ये आपकी जिंक भी हो सकता है, ठीक है। तो एनोड मड इन तीनों चीज़ों का होगा, ये सोल्यूशन में नीचे सेटल हो जाता है। अब रिएक्शन आप लिख लीजिए कि एनोड पे आप क्या रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड में आपका Ag ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये आपका सोल्यूशन में जाएगा। अगर आप कैथोड पे देखते हैं तो कैथोड पे आप देखेंगे तो Ag+ है, वो एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको पता है ये कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ये क्या है सोल्यूशन पे जा रहा है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो दिस वे योर मेटलर्जी ऑफ सिल्वर इज़ कम्प्लीटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट। सिल्वर की तो आप देखिए हर ऑल्टरनेटिव ईयर में ज़रूर आती है, सो यू विल नॉट इग्नोर योर सिल्वर मेटलर्जी।